Okay, guys, so let's start our session. So, what we are going to do today is Professor Mahendra Dev's reading or article on transformation of Indian agriculture, growth, inclusiveness, and sustainability. This is perhaps one of the biggest readings of your syllabus. Apart from that, the other big one which I specifically want you to cover is Rakesh Mohan's reading. We'll be covering this as well very soon. So these two are very important readings that you should not miss out on. But the issues that we'll be covering today, it will be relevant for all the readings for agriculture. So आप agriculture अभी पढ़ो कि अगर आप 2025 में अगर यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ो तो एग्रीकल्चर के इश्यूज़ यही हैं, ठीक है. एंड फर्स्ट आई विल लिस्ट आउट द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. First, I'll list out the general aspects of agriculture, which is not particularly from any reading, but it's a comprehensive. These are comprehensive issues with respect to agriculture, and then we will cover topic by topic each reading. So our focus for today, is to cover this particular reading, which is one of the biggest readings. So let us start our session. First of all, when we are talking about agriculture, there are certain issues that you need to understand, that what are the major issues with respect to agriculture in India. So कुछ हम जिसको मैं बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर का अगर आप ग्रोथ रेट देखो या एग्रीकल्चर का एनालिसिस देखो, देर आर सर्टन आईज दैट यू नीड टू फोकस ऑन. सो एग्रीकल्चर इन जनरल, आई डिवाइड एग्रीकल्चर इनटू issues of 4 I's. What are these 4 I's? The first I is that of investments. Second is incentives. Third is institutions. And the fourth I is... So when we talk about investments, we'll be talking about investments in terms of public investment versus private investment. Public investment versus private investment. Incentives, when we talk about incentives, we are going to talk about price incentives, non-price incentives. Institutions in terms of land, in terms of credit, in terms of market, in terms of infrastructure, in terms of your post-harvest management, infrastructure of say irrigation, or infrastructure of say water, infrastructure of technology, infrastructure of electricity per se. So these are important issues that we have to address with respect to agriculture, and there are certain new age issues that have come up in the agriculture as well. Chavi, I'm recording this lecture as well. So there are certain new age issues that have come up in agriculture. For example, the impact of climate change, the interaction of agriculture with the transformation of the economy. Okay, कि agriculture से industrial economy कैसे बन रहे हैं, या can we leave agriculture behind. Then the issue of agriculture extension services, which is basically agriculture में education कैसे, science and tech, R&D, all these are other issues which are related to agriculture. So agriculture का framework जो होता है वो इन्हीं major issues से related होता है. Now let us go through the reading and see what all issues have been talked about. And when we are talking about this particular reading, this reading majorly talks about that one of the issues that it covers is how to make agriculture. First of all, it does an analysis of agriculture, where we are, our growth rate, our productivity, and our output. All of that is being discussed first, and then it talks about the new age challenges and how to double the farmers income. This is a very important concept, doubling farmers income, DFI. and ये जो doubling farmer income का जो report था ये 2015-2016 से आया हुआ है. This is through what is called as Dalwai Committee. दलवाई कमेटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे. And it talked about that how by 2022-23, which is the current financial year, and this program was introduced in 2000. This particular initiative was started in 2015. That by 2022-23
वी वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम. तो ये डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के बारे में काफ़ी बात करते हैं कि व्हाट ऑल आर दी स्ट्रैटेजीज फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम. एंड फाइनली देयर आर सर्टन पॉलिसी रिकमेंडेशंस. ठीक है. So these are the three major topics discussed. First, an analysis of where we are. Then we go into how can we improve the situation right now with the current scenario that we have, and what all needs to be done, and certain policy recommendations in the end. So this is the broad framework of the reading. Then it also covers other issues. Let's go through that. So if you see, there are three inclusive, it talks about three goals of agricultural development. One is raising productivity. The other is that how do you also incorporate the how do you make agriculture more inclusive, and how do you make it more equitable in the sense that अभी हम देखेंगे कि agriculture का जो हमारा previous growth rate रहा है वो काफ़ी inequitous रहा है. And we have statistics for that, where I'll tell you that India के अंदर 86% of the farmers. So these are certain statistics that you should know for your answers. 86% of the farmers in India are small and medium farmers. What do you mean small and medium farmers? जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से कम होता है उसको स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स बोलते हैं इंडिया में. एंड ये जो 86% जो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये फार्मर्स हैं, इनके पास सिर्फ 44-45% ऑफ लैंड है. दैट मीन्स the top 14% is holding a huge amount of land with themselves. So हम वो inequity के बारे में बात करेंगे कि आज की डेट में इंडिया का जो लैंड पैटर्न है होल्डिंग का वो भी inequitous है. And somehow if you want to double the income, if you really want to change the agricultural sector, you have to focus on these individuals as well. So you cannot ignore them. The other thing that we will also cover will be that you can't just focus on agriculture. ये इस रीडिंग का एक और फलक्रम पॉइंट है, दैट आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं कर सकते, आपको अलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा. सो एग्रीकल्चर, व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. क्रॉपिंग एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर है जो 60% ऑफ इनकम देता है लोगों को, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्वे दैट यू आर फॉलोइंग. देयर आर 2 सर्वेज दैट हैव बीन डन. सो अगर आप नेशनल सर्वे अगर आप लोगे तो उसमें बता रखा है कि क्रॉपिंग और लाइफ स्टॉक फार्मिंग से 60% इनकम आती है. दैट मीन्स 40% इनकम बाकी सोर्सेज से आती है. तो अगर आपको किसी की इनकम डबल करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रॉपिंग से कर सकते हो, बाकी सारी एक्टिविटीज से भी कर सकते हो. फिशरीज फॉर एग्जाम्पल इज अ मेजर सोर्स दैट हैज़ स्टार्टेड कमिंग अप. ठीक है. और नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स भी आप देख सकते हो. So you have to see different methods through which you can raise the income of folks at the who are there in the agrarian sector. Then the other thing is inclusiveness. How do you focus on inclusiveness? And the third is sustainability of agriculture. When we'll talk about sustainability, we have to talk about water, electricity, soil quality, climate change. तो आज की डेट में जो एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वर से 15-20 ईयर्स अगो. पहले हमारा जो फोकस होता था एग्रीकल्चर का वो होता था प्रोडक्शन के ऊपर, सिर्फ कि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ कर दो. आज की डेट में सिर्फ प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करने का नहीं है. आज की डेट में हमारा फोकस जो है वो इनकम मैक्सिमाइजेशन पे हो गया है कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकते हैं. तो हमारा आउटलुक चेंज हो गया है फ्रॉम प्रोडक्शन टू इनकम. सो प्रोडक्शन का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीड्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे MSP दे के खाना मंगवा लो. दैट वॉज द फोकस ऑफ प्रोडक्शन. बट नाउ यू नो कि नाउ फॉर एग्जाम्पल इन states like Punjab you cannot have rice growing, basmati rice growing. In states like Maharashtra you cannot have water guzzling crops like sugar cane. तो आपको सस्टेनेबिलिटी भी साथ में देखनी है कि क्या उधर का एनवायरनमेंट, क्या उधर का रीजन, क्या क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता. सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी इनकोऑपरेटेड इन योर स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चर इन कमिंग ईयर्स. देन द रीडिंग टॉक्स अबाउट हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड ऑन दीज 3 गोल्स. जो मैंने आपको बताया कि पहले असेसमेंट करेंगे कि अच्छा इन 3 गोल्स में हमारा असेसमेंट क्या है, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्टिविटी, येस हमारा फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, बट वो एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग था. फिर उसके बाद अगर हम इंक्लूसिवनेस के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के अंदर, स्पेशली इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है.
सो उसको हमें एड्रेस करना है, हमें एड्रेस करना है कि जो लैंड ओनरशिप है वो बहुत ख़राब है इस आज की डेट में। बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। एंड वो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड पिछले कुछ टाइम में बढ़ती हुई गई है, विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन सस्टेनेबल, आज की डेट में जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। सो वी नीड टू चेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाउ। सो कमिंग टू द कंक्लूजन्स। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन्स, एंड में कंक्लूजन्स हैं जो आप सिंपल वे फॉरवर्ड, जब आप आंसर अपना लिखोगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर योर फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, तो आपको ये 10 कंक्लूजन्स बेसिकली लिखने हैं। न्यू नैरेटिव इन द न्यू कंटेक्स्ट, बेसिकली नैरेटिव ऑफ शिफ्टिंग योर आर्किटेक्चर फ्रॉम प्रोडक्शन टू इनकम क्रिएशन। Then there is a huge impact of global trends and macroeconomic policies on agriculture. We'll talk about that as well. एग्रीकल्चर, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर हैज़ टू, इफ़ यू वांट टू बूस्ट एग्रीकल्चर, इट हैज़ टू वॉक ऑन बोथ एग्रीकल्चरल लेग्स एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेग्स। दैट मीन्स आपको रूरल एरियाज़ में भी आपको इनकम और सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर पर से। Then there needs to be a shift from cereal based agriculture to non cereal based agri crops and allied activities, especially allied activities like floriculture हो गया आपका, या फिर for example fisheries हो गया। So this needs to be promoted. Then doubling farmers income has to is one of your focuses, and it has to also focus on non farm sector. Then वी नीड टू रेमुनरेट द प्राइसेस। यहाँ पर जब हम प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पिछले कुछ साल में एक्चुअली में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एग्रीकल्चर के अगेंस्ट गया है। नाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज समथिंग दैट यू वुड हैव लर्नड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एज वेल, वेयर इट इज़ नथिंग बट द प्राइस ऑफ, से जो हमारा जनरल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो आपने पढ़ा होगा, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, इसको हम नॉर्मल जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसको ये बोलते हैं। Then you also have so we'll see that how can we make agriculture more remunerative। और यहाँ पर जो आपकी थर्ड रीडिंग है इससे भी you can always quote, ये जो आपकी थर्ड रीडिंग है इससे भी you can always quote एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म, जिसके अंदर आपका एक तो ECA के आपने रिफॉर्म्स करें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग अगेन, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के। दूसरा आपने जो APMC का अबॉलिशन किया है उसका आपको रिफॉर्म आपको पता होना चाहिए। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो एंड जो आपने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी है। दीज आर 3 रिफॉर्म्स विच आर इन सिंक ऑफ what you are trying to achieve here, transformation of the entire agricultural sector, and this reading continuously talks about these 3 reforms as well. Although ये reading उससे पहले ऑलमोस्ट पहले लिख दी गई थी, but still the essence is the same, because the men behind the agrarian reforms are the same, Ashok Gulati and Professor Mahendra Dev, and apart from that Ramesh Chansar. So how to make remunerative, how to make agriculture more remunerative, then we have to go beyond harvest and give the freedom to farmers to markets and exports। जहाँ पर हम बात करेंगे ये APMC लॉज के बारे में, और ये जो हमने हमारा जो EC है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप एक कुछ टाइम से ज़्यादा नहीं रख सकते अपने पास। अगर किसी कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट लगा देती है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसके ऊपर इम्पोज कर देती है, तो आप उस किसी अमाउंट से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते। सपोज़ आपके पास 10,000 किलो पोटैटो पड़ा हुआ है और मार्केट में पोटैटो का प्राइस बढ़ रहा है, आपने स्टॉक करके रखा हुआ है, एंड गवर्नमेंट कम्स इन टू द मार्केट एंड सेज दैट आई एम पुटिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑन पोटैटो एंड नो वन कैन होल्ड मोर देन 1000 kgs ऑफ पोटैटो। आपके वो जो 9,000 kgs बचे हैं वो तो आपका बेकार हो गए। सो दैट काइंड ऑफ इंटरवेंशन शुड बी स्टॉप, एंड दैट इज़ वेयर व्हेन द प्राइवेट सेक्टर विल एक्चुअली एंटर द मार्केट। प्राइवेट सेक्टर तभी एंटर करेगा आपकी मार्केट्स के अंदर, एग्रीकल्चर मार्केट्स में, जब उसको पता होगा कि हाँ गवर्नमेंट बिना बात के इंटरफेयर नहीं करेगी। Then we can't forget about the fact of water and technology. We'll talk about drip irrigation, we'll talk about other kinds of application, new age application startups which have come up in the field of agriculture. Then inclusiveness is another focus, especially the focus on small and marginal farmers। याद रखना इसको, ये 2 हेक्टेयर लैंड से कम वाले लोग हैं, women, youth, rain-fed areas and especially eastern areas,
we have to take measures for them as well कि they are not left behind in the agrarian framework. Then we need to also take care of the impact on climate change, the impact of climate change, and make our agriculture much more sustainable, which we call in this particular reading as smart agriculture. How can we make our agriculture more smart? और इसके अंदर this is not given, but there are two techniques of making smart agriculture. One is called as your adaptation technique, and the other is called as mitigation techniques. अडेप्टेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट मच मोर स्टर्डियर सीड्स, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर कर दो आप टोमेटो की सीड की, पोटैटो की सीड को, सो दैट दे कैन सस्टेन रफ वेदर. जैसे आपने ये एक आपने अगर सुना हो GM कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन इंडिया के अंदर यूज़ होता है, तो उसकी वजह से जो बुलवर्म करके जो एक इंसेक्ट होता था जो ख़राब कर देता था क्रॉप, वो नहीं कर सकता. So you have genetically modified the seed of the particular crop so that that particular insect cannot actually prey on the cottle's seed balls. Similarly, you can probably have genetic engineering for other commodities where they can withstand the extremities of climate change. That these measures are called as adaptation measures. Then mitigation measures कैसे होते हैं? Mitigation measures हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप जितना तरीके का आप इरीगेशन कर रहे हो उसको चेंज करो. आज की डेट में हमारा इरीगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है, हम वाटर नीचे से निकाले जा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं. लेट्स मूव टू सस्टेनेबल इरीगेशन, समथिंग लाइक एज ड्रिप इरीगेशन, या यू माइट हैव हर्ड अबाउट हाइड्रोपोनिक्स. तो समथिंग लाइक दैट, दीज आर ऑल मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कि आप जो सिचुएशन है उसको और कम कैसे, उसको और कम बेकार कैसे बना सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड एज मिटिगेशन. और अडेप्टेशन होती है ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है उसके साथ आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो. Then comes the point of strengthening institutions and governance. Basically आपके जो institutions है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको आपको strong करना पड़ेगा for much more higher growth, equity and sustainability. Then let's, ये first page वही है, same चीज़ है. So the first part talks about that सारी countries, मतलब there are multiple views of agriculture कि agriculture से हमें growth हो सकता है कि नहीं हो सकता. टिपिकल मॉडल सेज कि कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनती है और इंडस्ट्रियल से सर्विस लेड इकोनॉमी बनती है. दिस इज़ द टिपिकल साइकिल. और इसमें आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यू माइट हैव आल्सो स्टडी अबाउट कुज़नेट्स हाइपोथेसिस, यू माइट हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट लुइस मॉडल की एग्रीकल्चर से एक्सेस लेबर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी. बट डज दैट मीन दैट यू कैन चेंज, यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर द एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एग्रीकल्चर से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिंक्ड हैं. एक एग्रीकल्चर से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्ड है, न्यूट्रिशनल आउटकम्स, और दूसरा एग्रीकल्चर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्ड है वो पॉवर्टी है. इट हैज़ बीन प्रूव दैट increases in agriculture has 2 to 3 times impact on poverty reduction when this growth is coming from agriculture as compared to industrial or service sector. So that means poverty reduction for your, इस रीडिंग में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ज़ीरो हंगर करने के लिए, ज़ीरो माल न्यूट्रिशन करने के लिए, ये सारे गोल्स करने के लिए एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट इग्नोर एग्रीकल्चर. Now, something that has happened across the world and which has also happened with us is that agriculture का जो शेयर है GDP में that has gone down. If you talk about 2021-22 तो agriculture का शेयर GDP के अंदर is somewhere around 16-17%, whereas its share in employment is somewhere around 42-43%, which shows that agriculture के अंदर अभी भी major employment होता है but they are not productive enough. So if you want to transform the agriculture, एक strategy ये है कि आप यहाँ से लोग निकालो, और दूसरी है कि इसकी जो खुद की productivity है उसको भी increase कर सकते हो. So both these factors needs to be considered simultaneously. Then as I was telling you that agriculture has an important role in sustainable development goals as well. For example, hunger, malnutrition, climate change, gender equity, natural resources, job protection. So sustainable development goals cannot be met if you are not meeting the agricultural growth rate. So we achieved, as I told you, we achieved self-sufficiency. So हमारा अगर आप analysis देखो agriculture का, तो 1970s से लेके 1990s तक
वी वर अंडर गोइंग वॉट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन. इसके 2 फेजेस चल रहे थे यहाँ पर. तो इसके बीच में वी अचीव, स्पेशली इन 70s वी अचीव सेल्फ सफिशेंसी, कि हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल. ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल में था कि आप लैंड बड़ी बड़ी लो, उसके अंदर HYV सीड्स डालो, फर्टिलाइज़र प्लग इन करो, पेस्टिसाइड्स डालो और इंटेंसिव वाटर दे दो. You put all of these together and you get a higher growth rate. But the problem is that this was not this was economically much more beneficial, but not ecologically. So ecologically it was a disaster, because what has happened because of this is we have spoiled the entire soil quality and the soil health in the northern region, especially Haryana or Punjab mein. So we achieved self sufficiency, especially in paddy and in wheat. But we still need to go ahead of that green revolution, especially in rain-fed areas. Rain-fed areas वो होते हैं जहाँ पर इरिगेशन नहीं होती है, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती. वहाँ पर सिर्फ बारिश अगर होगी तो वहाँ पर फसल उगेगी, नहीं तो फसल नहीं उग सकती. देन न्यूट्रिशनल क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, नॉन सीरियल्स, रिसोर्स पुअर फार्मर्स के लिए ये सब चीज़ों के लिए हमें काम करना है. The goals for growth, equity and sustainability, we need to achieve at least a 4% growth in agriculture. सबसे पहली तो ये बात है that we need to achieve agriculture का हमें benchmark होना चाहिए, हमारा agriculture का benchmark होना चाहिए 4% growth rate. Then within the agriculture we need a structural transformation from farm to non-farm sector. ठीक है, for example आज की डेट में सिर्फ हम फार्म पे फोकस करते हैं, but what about say food processing industries? We only process 10% of our food. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल आपका हो गया, जैसे आपने अगर रॉ के प्रोडक्ट्स टेस्ट करे हो या फिर अगर आप चिप्स खाते हो तो वो दीज आर ऑल फूड प्रोसेसिंग. देन समथिंग लाइक एज जैम्स एंड जेलीज. इफ़ यू सी एडवांस कंट्रीज 70 to 80% ऑफ देयर फूड को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, वहाँ प्रोसेस फूड बहुत चलता है. इंडिया सिर्फ 10% अपना फूड प्रोसेस करता है. दैट मीन्स वी आर लूजिंग आउट ऑन सच अ ह्यूज मार्जिन where we can generate a lot of income in the non-farm sector, but within the agricultural sector. Then as I told you कि दूसरा हमारा फोकस होना चाहिए small and marginal farmers पे, and third focus should be on environmental concerns, climate change and resilience for agriculture. Now one of the issues that I talked about is that the narrative in Indian agriculture is changing. So the landscape of agriculture has been changing in the last few years, especially because of urbanization. अब अर्बनाइजेशन से कैसे चेंज हुआ है, जितना हमारा अर्बनाइजेशन से एक नई मिडिल क्लास आनी शुरू हुई है, और उन मिडिल क्लास की जो डिमांड्स है वो अलग है. मिडिल क्लास डज नॉट डिमांड टिपिकल योर सीरियल्स. मिडिल क्लास की वजह से एक डिमांड शुरू हुआ हाई, व्हाट इज दैट कॉल्ड, हाई वैल्यू कमोडिटीज़. हाई वैल्यू कमोडिटीज़ के ऊपर हमारा वो शुरू हुआ है. सो यू हैव दिस डिमांड फॉर से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मीट. सो ये जो हाई वैल्यू कमोडिटीज़ हैं ये मिडिल क्लास और अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ है. दैट्स व्हाई यू सी सो मेनी स्टार्टअप्स एज वेल. फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड लिशियस, आई थिंक, which provides meat. It's doing really well. So something like that. It's because of urbanization that a number of things have started changing in the economy. Just a second, guys. Hello. Yes, guys. So that is one aspect of urbanization which has completely changed or which has changed the narrative in the Indian agriculture sector, and therefore you have these startups coming up. Then globalization and deglobalization has also had an impact, क्योंकि टैरिफ वॉर्स जो शुरू हो गई हैं, वर्ल्ड ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना शुरू हो गया है. पीपल स्पेशली लेड बाय द यूएस ने ना तो पेरिस क्लाइमेट चेंज को मान रहा था, ना वो WTO के रूल्स को मान रहा था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, एंड इट इज़ ऑलवेज इशू बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़ कि हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर को, बहुत ज़्यादा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ देते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म इन international trade. Then you have within the agricultural sector we want to diversify into non-rural, non-farm jobs. Then you have value chain, startups, technological issues. All of this are new issues which have come up in the agrarian sector.
So let's talk about three goals, that how have we achieved these three goals of your production, your equity concerns and sustainability. ये तीन गोल्स का हमारा अभी तक का क्या असेसमेंट है, एंड देन व्हाट ऑल पॉलिसीज आर नीडेड टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप. So these are, as I told you, these are the new age issues which have come up at the global level: climate change, urbanization, migration, automation, something like US policies of trade wars, and then Brexit, and you have anti-globalization measures like your WTO की बजाय लोग अब RCEP में ज्वाइन जा रहे हैं, लोग NAFTA ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपने अपने ट्रेड ब्लॉक्स बना रहे हैं. इंस्टेड ऑफ वन homogeneous trading system which was led by WTO, we have these regional trading systems which have come up, and आप अपने अपने इकोनॉमिक बॉर्डर्स बना रहे हो एंड ट्रेड कर रहे हो दूसरे इकोनॉमिक बॉर्डर्स के, दूसरे इकोनॉमिक ग्रुप के साथ में. So which has also had an impact on the tariffs, and by tariffs it impacts our country as well. One of the major challenges for the food system is that we also need to, why we cannot ignore the agricultural sector, because of the problems of hunger and triple burden of malnutrition, undernutrition, micronutrition deficiencies and obesity. So अगर आप डेटा देखो तो हमारा एग्रीकल्चरल, अगर आप if you ignore the agricultural sector, which will have a major impact on the health outcomes as well. So this is one of the reasons that you cannot ignore the agricultural sector. Now यहाँ से major concern शुरू होता है that let's see the growth of agriculture. So the three topics that we have to cover here are growth of agriculture, अभी तक का क्या growth है, what are the equity concerns जहाँ पर हम inequality और Gini coefficient देखेंगे, ठीक है, और फिर sustainability देखेंगे कि अभी तक के जो हमारी growth है वो sustainable थी या नहीं थी. So the first thing that we know is that the share of it is known that there is a decline in the share of agriculture workers in total workers, but that decline has been at a slower rate. That means that हम agriculture में से जो लोग एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम पेस से रिड्यूस कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू GDP का जो उसका शेयर है वो बहुत तेज़ी से गिरा है. To give you some statistics for that, 1990 के अंदर, this data is not given in your readings, एग्रीकल्चर एंड सर्विस का शेयर 1990 के अंदर एग्रीकल्चर और सर्विस का शेयर जो था वो 38% के अराउंड था. दोनों सेम GDP के अंदर दोनों का शेयर जो था वो सेम था. और उसके बाद से सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ के 61-62% पड़ गया है इफ़ यू इंक्लूड कंस्ट्रक्शन इन दैट. एंड एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 17% हो गया है. So which shows that you have after the neoliberal reforms, your share of agriculture has started decreasing by a huge margin, whereas you were not able to pull out people from the agrarian sector. एग्रीकल्चरल सेक्टर का इस 1990 में भी उसका शेयर जो था 60% के अराउंड था, बट वो 60% से आज की डेट में सिर्फ 45-44% हुआ है. बट आपका जो शेयर फ्रॉम GDP है वो ड्रास्टिकली फॉल कर गया, which essentially means that we need a structural change in agriculture, and that structural change can be brought about by agriculture plus activities. तो that means हम सिर्फ agriculture में नहीं बात कर सकते, हमें agriculture plus के बारे में बात करनी पड़ेगी. Now what do we mean by this agriculture plus? Let me just show it to you. ये देखो, this is what I mean by agriculture plus. एग्रीकल्चर का अगर आप देखो तो सीरियल्स का शेयर जो है वो 27% है, और अगर आप ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखो तो ये एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर है. बट जब आप एग्रीकल्चर के अंदर लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज ऐड कर देते हो तो एग्रीकल्चर पर से का जो शेयर है वो सिर्फ 58% रह जाता है. दैट मीन्स 42% ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर कम्स फ्रॉम लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज. तो यू कैन फोकस ऑन दीज एरियाज एज वेल टू इंक्रीज द इनकम. So therefore you need to focus on not just agriculture but agriculture plus, which also includes कि अगर आप post harvest management and अगर आप agro based industries के अंदर जा सकते हो तो. So that should be your focus when we talk about agriculture. See, the value chains includes agro processing. The share of agriculture will be much more higher अगर आप वो सारी चीज़ें include करोगे तो. Let us see the growth rate. अगर आप growth rate देखो
तो दिस वॉज द पीरियड ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन. ये आपका पीरियड है ग्रीन रेवोल्यूशन का. ये मैच्योरिंग फेज था, ये फर्स्ट फेज था. एंड उसके बाद जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट आया हमारा एग्रीकल्चर में वो आया 2004 से 2014 के बीच में, व्हेन वी वर ग्रोइंग अराउंड 3.6-3.7%. उसके बाद से हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 2015 एंड 2016 वर ड्रॉट ईयर्स. दीज वर ड्रॉट ईयर्स बिकॉज ऑफ एन फिनोमिना कॉल्ड एज एल नीनो. ठीक है, जोग्राफी में शायद से आपने पढ़ा हो. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो है वो इस तरीके से है. बट इफ़ यू कंपेयर एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स, हमारा देखो बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी रोबस्ट है, which essentially says that agriculture has been underperforming in the last few years. Then मैंने वो आपको बताया था ना 2000 ये लास्ट द फर्स्ट 2 years ऑफ दिस गवर्नमेंट हैड अ ड्रॉट, उसकी वजह से ग्रोथ रेट अभी कम है. At the same point of time, what we also see is that the volatility has gone down in Indian agriculture. But what is this volatility? Volatility basically means कि पहले क्या होता था, coefficient of variation. ठीक है, coefficient of variation जो होता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था. किसी को coefficient of variation का फॉर्मूला याद है? So this is coefficient of variation. तो coefficient of variation बेसिकली आपको बता रहा है कि कितना चेंज हो रहा है आपका ओवरऑल आउटपुट. तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत हाई होता है, दैट मीन्स कि इट्स अ वेरी वॉलेटाइल थिंग. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में कोई शेयर देख रहे हो और वो देख रहे हो कि पहले एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, और इफ़ यू सी द स्टॉक मार्केट इन द लास्ट 4 days, एक दिन 1000 पॉइंट गिर रही है, दूसरे दिन 1000 पॉइंट ऊपर हो रही है. सो दैट मीन्स देर इज़ वेरी लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरी लार्ज वेरिएशन दैट इज हैपनिंग, विच इज़ नेवर गुड. वॉट यू वॉन्ट इज समथिंग स्टेबल. And what we have observed in Indian agriculture in the last few years is that the coefficient of variation has gone down, and it has gone down in both pulses and cereals. So all you need to know is that the coefficient of variation has gone down, which means that there is much more stability in Indian agriculture. Stability आ गई है, और वो stability इसलिए आ गई है क्योंकि अब आपका ज़्यादा fields irrigated होते हैं. पहले आपकी इरीगेशन का जो एक्सपेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था. नाउ यू हैव मच मोर अदर सोर्सेज. फॉर एग्जांपल यू हैव फिशरीज, नाउ यू हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यू हैव लाइफ स्टॉक, यू हैव मच मोर बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़. इसकी वजह से अब इंडिया का जो वेरिएबिलिटी होता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो एकदम से इंडिया का एग्रीकल्चर पूरा डूब जाएगा, वो नहीं होता है. ठीक है, वी स्टिल हैव मेड दोज काइंड ऑफ resilience to rainfall. The resilience to rainfall has been rising in Indian agriculture. Then, but one major issue that is there is that ये जो farmers की income है वो fall कर रही है. So which essentially is translated by this figure called as deflators. Deflators अगर किसी को याद हो कि deflator क्या होता है, GDP deflator, तो GDP deflator होता है basically your current GDP अपॉन GDP कांस्टेंट. अगर आप किसी भी उसको करोगे तो ये आपका GDP डिफ्लेटर बन जाता है. GDP डिफ्लेटर बेसिकली ये बता रहा होता है आपको कि किस तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अगर इट्स द सेम थिंग कि अगर मैं करंट GDP को इन्फ्लेशन से, सपोज मैं आपका करंट GDP है, करंट GDP का मतलब समझते हो ना सारे, प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड एज करंट GDP. उसको अगर मैं इन्फ्लेशन से CPI से डिवाइड कर दूँ विच इज़ नथिंग बट अ डिफ्लेटर, तो मेरे पास कांस्टेंट GDP आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली दिस GDP, दिस CPI और प्राइस डिफ्लेटर इज़ नथिंग बट कि किस तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं. और इफ़ यू सी इन दी लास्ट जो इनका सर्वे ईयर्स हैं उसमें देखो तो 2017-18 में और 18-19 के अंदर जो प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत कम तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, विच ट्रांसलेट्स इनटू द फैक्ट कि फार्मर्स की जो इनकम है वो कम हुई होगी, फार्मर्स के लिए और लेस रेम्यूनरेटिव हो गया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉपिंग. सो which essentially translates into the fact कि terms of trade are moving against agriculture. तो terms of trade क्या होगा? terms of trade होगा price of agriculture upon price of any other sector, से industry. तो अगर agriculture का prices कम हो रहा है तो that means terms of trade agriculture के against जा रहा है.
So therefore, so agriculture, it's a worrying point that agriculture is not remunerative enough if the prices are falling. Then, in terms of transformation, in terms of structural transformation within the agriculture, we have seen three changes. एक हमने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. दूसरा हमने देखा है डाइवर्जन और डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलाइड एक्टिविटीज़, एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन फार्म सेक्टर. और इसका एक मेजर यूज़ हुआ है बिकॉज ऑफ NREGA और कंस्ट्रक्शन की वजह से ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है. नाउ डाइवर्शन विद इन द एग्रीकल्चर चलो देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, नाउ विद इन द एग्रीकल्चर क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना ऑफ अ कमिंग अप ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास, they have started demanding not your nutri cereals, they have started demanding oil seeds. Oil का हमारा वो ज़्यादा बढ़ गया. Whatever fried food that you have, whatever junk food that you have, if you see all metropolis, all of them are driven by junk food. That means जंक फूड किससे बन रहा है, वो ऑयल से बन रहा है. तो ऑयल सीड्स का और ऑयल का डिमांड बहुत मैसिवली इंक्रीज़ हुआ है. एंड अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% ऑफ आवर ऑयल, जो हमारा कुकिंग ऑयल है, ये जो आपका ऑयल सीड्स है, वो हम इंपोर्ट करते हैं. इंडोनेशिया एंड मलेशिया, 2 कंट्रीज जहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है. ऑयल सीड्स का ऑयल, पाम ऑयल जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है. एंड दी अदर एस्पेक्ट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है. फार्मर्स ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर दिए हैं, स्पेशली नियर सिटीज़. ये इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. दैट इज़ व्हाट इज़ सीइंग इन एरिया शेयर्स ऑफ क्रॉप्स. तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बेसिकली होता है कि टोटल देश के अंदर कितना क्रॉपिंग हुई. ठीक है, उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं. मैं अभी बहुत लूजली बता रहा हूँ. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का टेक्निकल डेफिनेशन ये नहीं होता. यूजली आई टीच इट इन ज्योग्राफी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया क्या होता है. बट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मान लो कि टोटल एरिया जो है पूरे कंट्री के अंदर कितना हुआ, उसके अंदर इफ़ यू सी द शेयर ऑफ ऑयल सीड्स हैज़ कॉन्टिन्यूसली बीन इंक्रीजिंग एंड द शेयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग. तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज़ नॉट दीज फिगर्स, ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज़ दैट इनके शेयर बढ़ रहे हैं. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है विद इन द एग्रीकल्चरल फ्रॉम योर न्यूट्री सीरियल्स टू your oil seeds and fruits and vegetables, which is perhaps an indication of this rising middle class. Then apart from that there is also movement in the overall architecture of agriculture from sheer cereals to non-cereals. The shares of livestock and fisheries and forestry has been rising continuously. सो अगर आप यहाँ देखो, लाइफ स्टॉक का जो शेयर है, और लाइफ स्टॉक जो है वो 30% प्रोवाइड कर रहा है. लाइफ स्टॉक में क्या होता है बेसिकली, कैटल रियरिंग, ये एक शुरू हो गया है, पिग रियरिंग, शीप रियरिंग, कैमल. ठीक है, और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं. मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मिल्क ले सकते हो, इससे आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, मीट ले सकते हो, पोल्ट्री इसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और इनका डिमांड ज़्यादा होता है और इनके प्राइसेस भी रियलाइजेशन बेटर होते हैं. तो देयर फॉर व्हाट वी आर सीइंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इज़ दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन इन फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, सीरियल्स टाइप्स टू लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज. एंड दिस हैज़ बीन बेसिकली, ये इसको हम बोलते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, इन्हीं को हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स. और इसका मेजर रीज़न है बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, राइजिंग पर कैपिटा इनकम, मिडिल क्लास, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन अर्बन जॉब्स. सो ऑल ऑफ दैट आर रीजन्स फॉर दिस. Then another issue where we have potential but we are not utilizing that potential is that we only process 10% of our fruits and vegetables, whereas the other countries process somewhere between 40% to 70% of their fruits and vegetables. So this is a low hanging fruit that we can probably latch on to. However, to realize this low hanging fruit, we need to focus on the chains of food processing, cold chains, wholesalers,
लॉजिस्टिक्स, तो ये आपका जो चेन है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इस एरिया के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है. सो until unless you have a really strong logistical chain, you cannot survive this kind of industry. And that is where these niche startups like there is this startup, I mean अब तो खैर वो very well known है, बिग बास्केट का बिग बास्केट डेली हो गया, या फिर अब ये जेप्टो वगैरह भी इन चीज़ के डिलीवरी में आ गए हैं, या स्विगी आ गया है. सो दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, एटलीस्ट स्टोरेज के अंदर काम कर रहा है, अभी फूड प्रोसेसिंग में नहीं गए. But this is a sunshine sector, and that's why you see a lot of new products coming up in the agrarian sector and in this food processing sector. Then the other change, तो हमने 3 changes के बारे में यहाँ बात करी. पहले चेंज के हम बात जो कर रहे हैं वो हमने कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर ही चेंज हुआ है. दूसरा हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाई होकर अलाइड एक्टिविटीज़ में आ रहा है. और तीसरा हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हमारा फोकस आया, स्पेशली बिकॉज ऑफ NREGA, नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की वजह से, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है. सो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग. सी द शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज़ कंटिन्यूसली बी इंक्रीजिंग बोथ फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स. ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुई है. 60% ऑफ मेल्स आर नाउ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड 75% जो एग्रीकल्चर के अंदर रूरल वर्कफोर्स है वो फीमेल्स है. ठीक है. So this is how this is what has happened in case of rural workforce, which we are seeing that there is this refreshing change of diversification at 3 levels: within agriculture, from agriculture to allied activities, and from agriculture to non-farm agriculture. ठीक है, और यही मेंशन है यहाँ पर. Now doubling farmers income. नाउ डबलिंग फार्मर्स इनकम जो ये प्रोजेक्ट है, ये एज यू कैन सी कि 2022 तक करना था, बट अभी इस पूरे स्कीम की पूरी अच्छे से वाट लगी हुई है. ठीक है, हम हार्डली कुछ साइड से 10% या फिर 20% इंक्रीज़ कर पाए होंगे, तो डबल तो बहुत दूर की बात है. बट दी एम्फेसिस वॉज कि आज की डेट के अंदर, अच्छा इस रीडिंग के अंदर नहीं है, बट आज की डेट के अंदर जो 2015-16 में एक एवरेज फार्मर की जो इनकम थी फार्मिंग हाउस होल्ड की, एक फार्मिंग हाउस होल्ड, एवरेज फार्मिंग हाउस होल्ड की इनकम 8,000 रुपये होती थी. ठीक है, उसको अब इनको 16,000 रुपये करना था बाय 2022. दिस वाज द एम ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम. ये दूर दूर तक नहीं पूरा हुआ है, बट और रियल टर्म्स में, बाय द वे, नॉट इन नॉमिनल टर्म्स, रियल टर्म्स में आपको चेंज करना है, डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन. सो और इसको अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर को बिटवीन 2015 टिल 2022 10% से ग्रो करना था, बट एग्रीकल्चर जो है हमारा 3% से ग्रो किया है, विच शोज़ दैट हमने ऑलमोस्ट सिर्फ 30% अपना टारगेट अचीव किया होगा. देन नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट दैट ये एग्रीकल्चर को हम कैसे फार्मिंग अगर हमने इनकम डबल करनी है तो किस पे फोकस करें हम. तो देर आर 2 सर्वेज दैट हैव हैपेंड. एक NSS का, एक नाबार्ड का सर्वे हुआ और एक NSS का सर्वे हुआ. ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, और एक नाबार्ड का सर्वे हुआ. अब ये दोनों सर्वे थोड़ा अलग अलग चीज़ें बताते हैं, बट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है. कंपेरेबल इन द सेंस कि दोनों की स्टोरी सिमिलर है. दोनों की स्टोरी क्या है कि अगर आप कल्टीवेशन का अगर आप रोल देखो NSS का सर्वे से, तो कल्टीवेशन का जो रोल है वो अराउंड 48% है, और उसके अंदर अगर आप एनिमल्स ऐड कर दो तो 60% जो आ रहा है पैसा लोगों के घर पे. एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड 60% जो इनकम है वो एवरेज हाउस होल्ड जो है वो एग्रीकल्चर से कमाता है. 40% जो है उनकी इनकम वो नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज से आ रही है, मेजरली वेजेस से. और ये वेजेस कहाँ से आ रही होगी? वो मेजरली NREGA से आ रही है. ठीक है, ये बोलता है आपका NSS का सर्वे. आपका नाबार्ड का सर्वे कहता है कि बॉस आपका एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का अगर आप शेयर ऐड कर लो तो सिर्फ 42% है. दैट मीन्स आपका शेयर फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ जो है वो 58% है. आप फिगर यहाँ वाली ले लो कि दूसरी वाली ले लो, दैट डज नॉट मैटर. इट कैन दैट व्हाट यू कैन से इज नॉन एग्रीकल्चर का इनकम का जो शेयर है
अगर आप नाबार्ड का लोगे सर्वे, अगर आप नाबार्ड का सर्वे लोगे तो उसका शेयर, नाबार्ड का शेयर कह रहा है कि 58% है। अगर आप एनएसएस का सर्वे लोगे तो वो कह रहा है कि कितना था, 40% है। बट इसेंशली बोथ ऑफ देम टेल यू दैट द agriculture, if you want to double the income, you cannot just rely on agriculture per se. agriculture की income जो है उसका शेयर 60% से 40% के बीच में है। नॉन एग्रीकल्चर पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। इफ़ यू लीव नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर यू कैन नॉट हैव दैट डबल इनकम वाला जो आपका गोल है वो नहीं पूरा हो सकता। हैविंग सेड दैट द ऑथर सेज कि चलो एटलीस्ट पहली बार किसी ने 70 साल में रियलाइज़ तो किया। आज तक तो हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे थे कि हमें इनकम के ऊपर फोकस करना। अभी तक तो हमारा सिर्फ फोकस जरूर था कि प्रोडक्शन करते रहो, प्रोडक्शन करते रहो, ठीक है, पैसा फूकते रहो और प्रोडक्शन करते रहो, सब्सिडीज देते रहो। पहली बार किसी सरकार ने सोचा है दैट बॉस हमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं देखना, हमें देखना है इनकम ट्रांसलेट हो पा रही है नहीं हो पा रही, और मार्केट्स ठीक से ऑपरेट कर पा रही नहीं कर पा रही। सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो ये आपका अभी तक जो एस्पेक्ट था वो था अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ तक आपकी परफॉर्मेंस हुई। रिमेंबर हम पहले परफॉर्मेंस देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर जो नए चैलेंजेस हैं वो देखेंगे। तो यहाँ तक सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस खत्म हुई, जिसमें हमने परफॉर्मेंस मल्टीपल फैक्टर्स से देख लिए। अब हम इंक्लूसिवनेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इक्विटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो इंडिया का अंदर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर वो है कि इंडिया के अंदर ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल होता है जिनके पास 1 हेक्टेयर लैंड से कम है, और स्मॉल होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से कम है। तो 2 हेक्टेयर लैंड से कम वाले जो लोग हैं उनके पास जो शेयर है, शेयर इन फार्म लैंड होल्डिंग्स, इन दोनों को ऐड करो तो आपको मिल जाएगा कि 86% ऑफ लैंड जो है वो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के पास है। मतलब इंडिया के अंदर 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं। और उनके पास लैंड कितनी है, उनके पास लैंड है, इन दोनों को ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 47% लैंड इनके पास है। दैट मीन्स जो टॉप के 14% लोग हैं उनके पास इतनी लैंड है, 52% 53% लैंड है। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्विटी है, और वो इनइक्विटी इसलिए है क्योंकि लैंड की फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और फ्रैगमेंटेशन इस एक्सटेंट तक हो गई है कि वो सस्टेनेबल ही नहीं रह गई है एग्रीकल्चर से वहाँ पर करना। इससे अच्छा तो आप लैंड बैंक बना के उसको लीज़ कर दो। और यही एक एम्फोसिस है न्यू लैंड लॉज पे भी, कि अगर आपका एरिया जो है इतना छोटा है जो सस्टेनेबल ही नहीं है तो आप उसमें एग्रीकल्चर क्यों प्रैक्टिस करना चाहते हो। उसको या तो आप सारे लोग मिलके उसको एक साथ लैंड प्रैक्टिस कर लो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर लो, FPO टाइप बना लो जिसको हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो सीधा कॉर्पोरेट को उठा के लैंड दे दो और वो अपने आप ऑपरेट करेंगे इफ़ इट इज़ अनसस्टेनेबल फॉर यू। और ये हमें यहाँ से भी दिख रहा है कि देखो एवरेज लैंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो है 2 हेक्टेयर होती थी 70s के अंदर, 1 हेक्टेयर हो गई 90s के अंदर, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर तक ही पहुँच गई है। विच मीन्स कि एक एवरेज जो फार्मर है वो स्मॉल फार्मर रह गया है, मार्जिनल फार्मर रह गया है इंडिया के अंदर, जिसके लिए एग्रीकल्चर एट टाइम्स करना ही अनसस्टेनेबल हो गया। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि नंबर ऑफ सर्वे सेज दैट 40% of farmers in India would like to leave agriculture if given a choice, but they are just bound by that particular sector. So it is because of this unsustainability, and this is also mapped in our income and wealth Gini. अगर आप कंजम्पशन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी देखोगे रूरल एरिया इंडिया का और अर्बन इंडिया का, तो आपको दिखाई देगा कि ये देखो रूरल इंडिया, टोटल इंडिया के अंदर तो दिखाई देगा, रूरल इंडिया के अंदर देखो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है व्हेन इट कम्स टू इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। कंजम्पशन इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा इतनी कम क्यों होती है? बाय द वे गिनी कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 की तरफ परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ जाता है, और अगर 1 की तरफ जाता है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी की तरफ जाता है। तो जितना 1 की तरफ होगा उतना ज़्यादा अनइक्वल होगा। इसेंशली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है इवन इन रूरल एरियाज़ व्हेन इट कम्स टू इनकम गिनी एंड वेल्थ गिनी। कंजम्पशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लोगों का, क्योंकि कंजम्पशन के सर्वे सिर्फ कंजम्पशन देखते हैं, ठीक है, बट इनकम में बाकी सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रबलिंग, एंड दिस इनकम गिनी जो है वो बढ़ ही रहा है, आपका इनकम और ये वाला वेल्थ गिनी जो है वो बढ़ ही रहा है, ठीक है।
So which shows that inequality has been increasing in India, and inequality is not just increasing per se, आपको अक्रॉस रीजन्स भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई मिल जाएगी. कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कम इनइक्वालिटी है. तो कुछ विलेज लेवल सर्वेज हैं जो बेसिकली बता रहे हैं ये इनइक्वालिटीज़ के बारे में. तो इनइक्वालिटी इज़ नॉट जस्ट मैनिफेस्ट, एग्रीकल्चर इनइक्वालिटी इज़ नॉट जस्ट मैनिफेस्ट एट द सरफेस लेवल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एग्रीकल्चर, दे आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग एट द विलेज लेवल एंड they are also manifesting at the state level. Then apart from that, apart from your small and marginal farmers, the role of women is also very important, because remember, women, 75% of women in rural areas are working in agriculture. ठीक है, and which essentially shows कि एग्रीकल्चर में यूजली मीनियल काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो हमें देखना है कि कैसे उनको हेल्प करना है. देन वुमेन वर्क हार्डर देन मैन इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, एंड वी ऑल्सो नीड टू इनकरेज यूथ टू टेक अप एग्रीकल्चर जो लेना नहीं चाहते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चर का, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, उसके इम्प्लीकेशंस एंड उसकी इक्विटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपकी हेल्थ के आउटकम्स के बारे में बात करेंगे. और हम हेल्थ आउटकम्स के बारे में बात करेंगे तो दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मैल न्यूट्रिशन, हंगर, इन सारे इश्यूज़ के लिए. और इंडिया के अंदर यू कैन नॉट इग्नोर एग्रीकल्चर, बिकॉज आज की डेट में भी इफ़ यू सी दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा, तो आज के टाइम में भी, और इससे ज़्यादा और ख़राब हो गया है. जो नेक्स्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आया है वो इससे भी ख़राब है. सो स्टंटिंग 38% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टंटेड, जिनका हाइट कम है. अंडर वेट जो है वो 35% है. वेस्टिंग 21% है. अनीमिया जो है 50% में है. विमेन जो है 50% ऑफ विमेन आर एनीमिक. एंड अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज इन one of the solution lies in agriculture. It's not exclusively agriculture, but without agriculture you cannot solve these problems, क्योंकि most of them are led to protein, energy, malnutrition. Protein and micronutrients, ये दोनों चीज़ें जो है, ये मैंने लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी एक रीडिंग पढ़ाया था, उसके अंदर भी वी टॉक्ट अबाउट दैट ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन. सेम थिंग है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा कमी है. एंड अगेन एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है. एंड वो जो माल न्यूट्रिशन है वो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है कास्ट में, एससीज एंड एसटीज़ में और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और रूरल एरियाज़ में और ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़. सो विच शोज़ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, की कहाँ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्रीकल्चर का रोल, क्योंकि यहाँ पर इनइक्विटी काफ़ी ज़्यादा है. एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वेदर आवर एग्रीकल्चर इज सस्टेनेबल और नॉट. एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, हमारा जो एग्रीकल्चर, जिस तरीके से हमने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया है, उसकी वजह से हमारा मेजर वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ हैं, सॉइल एरोजन का है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, सॉइल हेल्थ है. ठीक है, देन डिफॉरेस्टेशन है, मोनोकल्चर है. मोनोकल्चर होता है कि बेसिकली आपने बहुत सारी, पहले आप क्रॉप्स उगाते थे, ठीक है, उसके बजाय पे आप सिर्फ एक ही क्रॉप उगाते हो, तो आपका सॉइल जो है वो भी ख़राब हो जाता है मोनोकल्चर से. ठीक है, तो सॉइल हेल्थ ख़राब हो गई है, मोनोकल्चर कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया है आपने, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कर दिया, वाटर लॉगिंग और सॉइल इरोजन का बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं. ठीक है, सो दीज आर टिपिकल इश्यूज. एंड ये देखो, ये लिखा है ना, मोनोकल्चर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, और इसकी वजह से आपके कई प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनली WTO के अंदर भी वो मीट नहीं करते. इंडिया के मैंगोज़, इंडिया के फिशरी, स्पेशली इंडिया के फिशेज़, इनलैंड जो फिशेज़ होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशेज़. ठीक है, फिशरीज़ जो होती है वो 2 तरीके होती है, एक इनलैंड होती है और एक सी फिशिंग होती है. इंडिया की जो इनलैंड फिशेज़ होती हैं, जो गंगा और यमुना सागर जो पकड़ते हो, वो जो फिशेज़ हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ली नहीं आती हैं. ठीक है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तो मीट ही नहीं करते हैं वो. तो क्योंकि उनमें हम अपने फील्ड्स में पेस्टिसाइड इतना डालते हैं और फर्टिलाइज़र इतना डालते हैं, वो जाके लीच कर जाता है वाटर के अंदर, और वो अल्टीमेटली बायो मैग्निफिकेशन एक टर्म होता है, तो उस बायो मैग्निफिकेशन की वजह से क्या कहते हैं, फिशेस के अंदर आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज़. और फिर उसके बाद हमने सॉइल हेल्थ और ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने आपको बता दिया.
देन सस्टेनेबिलिटी में एग्रीकल्चर का बहुत इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड मोर। तो क्लाइमेट चेंज जब होगा तो उसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ वेदर होगी, ड्रॉट्स ज़्यादा आएंगे और फ्लड ज़्यादा आएंगे। सो उसका इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड टू शो, एंड उसका इम्पैक्ट ज़्यादा किस पे होगा, जो भी एरिया अनइरीगेटेड होगा, अनइरीगेटेड खारिफ एंड अनइरीगेटेड राबी, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर आपके पास ड्रॉट आ गया बाई चांस, फॉर एग्जांपल ये वाला साल जो है वो पॉसिबली ड्रॉट का दिख रहा है अभी तक, तो जबकि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि ड्रॉट नहीं होगा, बट अगर ड्रॉट आ जाता है तो जो एरियाज़ इरीगेटेड है, जहाँ पर कैनाल का ऑलरेडी फैसिलिटी है, जहाँ पर आपके स्प्रिंकलर्स की फैसिलिटी है, जहाँ पर कुछ ना कुछ पॉन्ड्स की फैसिलिटी है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जहाँ पर अनइरीगेटेड है, जहाँ पर सिर्फ रेनफॉल डिपेंडेंट है, वहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो आउटपुट और यील्ड के ऊपर, इनकम, फार्म इनकम और यील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उन एरियाज़ में जहाँ पर आपकी ज़्यादा, जहाँ पर आपका अनइरीगेटेड है। और खारिफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू राबी। कैन समवन गिव मी दिस आंसर कि खारिफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों होगा? Exactly. Kharif crops are usually summer crops. They are more water dependent, and because they are more water dependent, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है, उनकी इनकम्स के ऊपर भी और उनकी यील्ड्स के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। तो अभी तक जो हमारा यहाँ तक फिनिश हुआ, हमने क्या किया, हमने बात करी एक एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस ऑन वेरियस पैरामीटर्स, दूसरी हमने इक्विटी के बारे में बात करी, और तीसरी हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करी। What has been the trend till now? यहाँ तक समझ में आया रीडिंग? चलो, now what we are going to cover is that what all are the policies that are needed to transform the agriculture. ठीक है, अब एग्रीकल्चर को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो अब हमें क्या पॉलिसीज़ करनी पड़ेंगी? तो वी फोकस ऑन मैक्रो पॉलिसीज़ अंडर डबलिंग फार्मर्स इनकम, वाटर एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे पॉइंटर्स हैं, बस ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। सो सिर्फ पॉइंटर्स और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर, तो यू कैन ड्रॉ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट और अ काइंड ऑफ अ डायग्राम वेर यू कैन टॉक अबाउट कि इश्यूज़ जो है, इनको इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करोगे। बेटर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है। बेटर, व्हाट डू यू मीन बाय बेटर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़? क्योंकि एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर पॉलिसीज से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपोर्ट बैन कर देते हो, अगर मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, राइस का प्राइस सपोज ज़्यादा हो रहा है, और आप कंट्री में एक्सपोर्ट बैन कर देते हो, तो आपने तो जो प्रोड्यूसर है उसको हर्ट कर दिया। उसके पास मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था, आपने उसको अलाउ ही नहीं करा लेने से। और कई बार आप इंपोर्ट भी बैन कर देते हो अगर आपका एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है। कोई चेन है जो बाहर से कुछ सामान मंगवा सकती है और अब वो मंगवा ही नहीं पा रही है क्योंकि आपने इंपोर्ट बैन कर दिया। कई बार आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के रूल्स लगा देते हो। कई बार आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर एक्सेप्टेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ क्वालिटी रीजंस। देन आपके मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वेदर इट्स क्या कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड, टैरिफ, एक्सचेंज रेट, ऑल हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. But the solution is the solution in is in the non-agriculture or is it in the agricultural sector? बहुत सारे जो ट्रेडिशनल क्लासिकल जो आपके वो मॉडल्स हैं ऑफ ग्रोथ, वो कहते हैं कि बॉस आपको एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ना और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस करना, जो लुइस भी बोलता है कि धीरे धीरे लोगों को पुल करो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में. ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मैं बात कर रहा था कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी के लिए एग्रीकल्चर इज जनरली मोर इफेक्टिव. वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ सेज दैट एग्रीकल्चर इज, अगर आपको पॉवर्टी रिड्यूस करना है तो इट इज़ 2 to 3 times मोर इफेक्टिव दैन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर. तो एग्रीकल्चर का रोल पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, इक्विटी के लिए, इन सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अभी भी बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का. सो यू कैन नॉट से दैट एग्रीकल्चर, यू कैन इग्नोर एग्रीकल्चर and you can just focus on the non-agricultural sector. Having said that, non-agricultural sector also needs to be focused on alongside agricultural sector. Then as I was telling you about this Ashok Dalwai committee, ठीक है, this Ashok Dalwai committee was talking about doubling farmers income and focusing on increasing productivity.
focusing on increasing productivity, increasing total factor productivity, diversification into high value crops. Now you know what high value crops are, fruits and vegetables, oil seeds वगैरह. इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप एक सीज़न के अंदर कई बार 2 क्रॉप्स या 3 क्रॉप्स उगा रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं एक ही सीज़न के अंदर या तो 2-3 क्रॉप्स उगा रहे हो, या फिर आप 3-4 क्रॉप्स उगा रहे हो. मतलब इमीडिएटली आप ज़ैद एक सीज़न होता है उसमें भी आप क्रॉप उगा रहे हो, और उसके बाद राबी में भी क्रॉप उगा रहे हो. आप सिर्फ मोनोकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. देन इम्प्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड. इम्प्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब हम समझ गए हैं दैट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी हाई. दैट मीन्स फार्मर्स को जो रियलाइज होने वाला है प्राइस वो हाई होगा. और वो हाई कब हो सकता है, जब आपकी मार्केट जो होंगी वो बेटर रिफॉर्म होंगी. जैसे आपने APMC को रिफॉर्म किया तो उसकी वजह से आपकी फार्मर के पास बेटर ऑप्शंस हो पाएंगे कि वो कहीं और भी बेच सकता है. वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर पेपर दैट कई जगहों पे एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए, टोमेटो के लिए हम 40 रुपये किलो दे रहे हैं और फार्मर को सिर्फ 1 रुपये मिल रहा है. दैट मीन्स 39 रुपीज़ इज़ जस्ट बीइंग अपोर्शन्ड बाय दीज मिडल मैन. सो दिस शोज़ कि काफ़ी स्कोप है टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज करने का थ्रू चेंजिंग लॉज. And then shifting from cultivators to non-farm and subsidiary activities which we have also talked about. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. 60% ऑफ इनकम, ये जो NSS का डेटा था कि 60% ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम फार्मिंग एंड बाकी सारे जो इनकम आता है वो नॉन फार्मिंग से है. एंड वी वांट टू टारगेट दिस 60% एज वेल एज दैट दी अदर 40%. हाउएवर देयर आर सर्टन इशूज़. वो सर्टन इशूज़ क्या है कि रियल इनकम जो है पिछले 10 साल में, अगर आप पिछले 10 साल का देखो तो सिर्फ 32% से बढ़ी है, और आप कह रहे हो कि 100% से बढ़ा दोगे 5 साल में, जो ऑलरेडी नहीं बढ़ी है. फिर उस दैट मीन्स 10% ग्रोथ रेट आपको अचीव करना, जबकि आप सिर्फ 2.5% ग्रोथ रेट पे चल रहे हो. तो ये एक इशू है. देन जो आपके स्टैटिस्टिक्स है, नाबार्ड का स्टैटिस्टिक्स कुछ और बोलता है और आपका NSS का स्टैटिस्टिक्स कुछ और बोलता है. देन some people think that more opportunities, government should promote more opportunities in non-farm sectors in rural areas rather than focusing on just farm sectors. Then apart from within the agricultural sector, it is the marginal sector, marginal and small farmers which should be at the development strategy. और ईस्टर्न इंडिया के जो रीजन है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये आपका रीजन जो है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉवरिशमेंट है वो यहीं पे है एग्रीकल्चर के अंदर. ये 86% ऑफ फार्मर्स के बारे में हमने बात करी. एंड अनदर इशू दैट कैन बी कवर्ड इज़ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो प्रैक्टिस हो सकती है जिसमें आप केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते. नाउ as प्रोफेसर देव हैज सेड दैट एटलीस्ट एक इनिशिएटिव है यहाँ पर कि आपको इनकम पे ज़्यादा फोकस करना है रादर दैन प्रोडक्शन. एंड उसके लिए प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्राइसिंग एंड मार्केट, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस में मार्केट एक इंस्टीट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके अंदर आपको ये जो APMCs के जो लॉज हैं उसको रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. और आपका अभी तक जो प्रोक्योरमेंट चलता है, प्रोक्योरमेंट जो चलता है वो सिर्फ मेजरली वीट और राइस के लिए होता है, और वो आप सिर्फ 80% जो प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं वो आप वेस्टर्न यूपी से कर रहे हो, हरियाणा से कर रहे हो और पंजाब से कर रहे हो. तो MSP चाहे आपने दे दिया है, बट वो एक्चुअल वो सिर्फ एक पेपर प्रॉमिस है, एक्चुअली में आपने कुछ नहीं किया हुआ है. तो दैट हैज़ टू चेंज. So increase in MSP does not have any meaning unless procurement of that particular crop is done, which is not done in a sense. And उसमें कई इनकम सपोर्टिंग मेजर्स हैं. उसमें एक मेजर का नाम देख लेना, एक स्कीम का नाम देख लेना, राइथू बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, UPSC में भी कई बार पूछी गई है, ठीक है. UPSC के मेंस में भी कई बार इसका आंसर का रेलेवेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेटर स्कीम्स जहाँ पर आप इनकम फार्मर्स को इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट देते हो, कि उनको 4,000 रुपये पर एकड़ पर सीज़न देते हो कि आप इन्वेस्टमेंट करो अपने क्रॉप्स के लिए. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेटर प्रैक्टिसेस, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई TRS हैज़ ऑल्सो कम इन टू पावर कपल ऑफ टाइम्स. देन मार्केटिंग रिफॉर्म्स में आपको यही बता चुका हूँ. टोमेटोज़ का 40 रुपये केजी उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है, जबकि फार्मर को 1 रुपये मिल रहा है. तो ये आपको मार्केटिंग रिफॉर्म, जो आपके APMC लॉज है उनको आपको चेंज करना पड़ेगा. और आपको ये ENAM का जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जो एक काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट आपने बनाई है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, उसको ऑपरेशनल करना पड़ेगा.
देन वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम सीरियल बायस्ड पॉलिसीज़. हमारा जो काफ़ी सारा जो पॉलिसीज़ होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कैप्चर जो है वो नदर्न इंडिया के पॉलिटिशियंस के पास बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से एमएसपी बढ़ता रहता है और उनका पॉलिटिकल कैप्चर की वजह से हम बाकी सारे एरियाज़ पे फोकस नहीं कर सकते. तो वी नीड टू फोकस मोर ऑन नॉन सीरियल्स या फिर अदर इश्यूज़ पे करना है, क्योंकि समथिंग लाइक राइस एंड वीट हैव अदर इम्प्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र को जो सब्सिडी दे रहे हैं, वाटर की सब्सिडी दे रहे हैं, पावर की दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, सीड दे रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट इज़ टू हाई. We need to change the focus from these kinds of cereals to environmentally more sustainable cereals. And then we need to focus more on beyond harvest in terms of post harvest management, जहाँ पर it is said that India has a missing middle in terms of marketing, कि आपने प्रोड्यूस कर दिया बट आपको उसको वैल्यू चेन में उसको आपको प्रोसेस करना नहीं आ रहा है. आप उसको स्टोरेज, प्रोसेस करना, एग्री बिजनेस चलाना, वो जो एक चेन है वो मिसिंग है, जिस पे आपको काफ़ी फोकस देना है. Another source of income could be exports, but exports can only be there once you have this kind of a architecture where you do not intervene into the market. गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, अपनी ट्रेड पॉलिसी की वजह से कई बार मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कर देती है, एक्सपोर्ट बैन कर देती है. अब अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकता. मुझे चाहिए कि कोई प्रिडिक्टेबल हो, सरकार हो जो बताए कि अच्छा मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी मार्केट के अंदर. सो ऑल ऑफ दैट हैज़ टू फिनिश. Only then farmers will be much more encouraged to produce and then to exports. Then startups के ऊपर I have already talked about कि startups is one more area. Focusing on water and technology. यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, वो हैज़ टू इंक्रीज, बोथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. और स्पेशली R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होना है. R&D के अंदर हमारा सिर्फ 0.6% ऑफ एग्री GDP हम स्पेंड करते हैं, विच इज़ अ मेजर कंसर्न. अगर आप एग्रीकल्चर में स्पेंड नहीं करोगे, अगर नई सीड्स, नई टेक्नोलॉजीज़, नए इंजीनियर्स, नए साइंटिस्ट के ऊपर स्पेंड नहीं करोगे, तो हाउ विल यू कम अप विद दीज न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर. आपको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन ड्रिप इरिगेशन, इन हाइड्रोपोनिक्स, इन वर्टिकल एग्रीकल्चर. ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, फॉर विच यू नीड दिस काइंड ऑफ GCF टू बी इंक्रीज्ड. See, one of the things, India uses 2 to 3 times water to produce just 1 ton of grain as compared to China, Brazil and US. So इंडिया जो है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा वाटर इंटेंसिव यूज़ कर रहा है. तो दैट मीन्स हमारे इरीगेशन में प्रॉब्लम है. तो वी नीड टू चेंज दिस काइंड ऑफ इरीगेशन प्रैक्टिस. अनदर थिंग इज़ लैंड लीजिंग, कि आप लैंड लीजिंग कर सकते हो. लैंड लीजिंग का मतलब होता है कि फार्मर के पास ऑप्शन हो कि यार मुझे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करना, मैं इस लैंड को किसी और को देना चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिस कर ले, या फिर मैं प्राइवेट सेक्टर को देना चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिस कर ले. सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी इनकोऑपरेटेड इन द इंडियन एग्रीकल्चरल लॉ, लैंड लॉज, जिसके लिए मॉडर्न लीजिंग एक्ट्स आए हुए हैं. देन रिसर्च टेक्नोलॉजी, वही मैंने आपको बताया कि IT के अंदर हमने पैसा नहीं डाला हुआ. ये 0.6% ऑफ एग्री GDP, इट शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 1% ऑफ एग्री GDP. देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीडिंग ऑल टॉक्स अबाउट, ये जो हमारे जो शुरू के जो 10 पॉइंट्स थे उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके अंदर व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कवर दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम रनिंग लेट फॉर अनदर मीटिंग. ठीक है, सो आई विल जस्ट कवर दिस final part of what all needs to be done in Indian agriculture to change the challenges that we are facing right now, and then we will also cover this particular reading in the next session. We will cover this particular reading because this is a very small reading and it's an important reading as well, जिसके अंदर वो 3 farm laws के बारे में आता है. तो again another half an hour, 45 minutes we can cover this entire particular section. So probably tomorrow or day after, most probably tomorrow we'll have this particular session. ठीक है, चलो, okay guys, thank you very much. See you tomorrow then.